Assalamualaikum dear students, class 11, unit ionic equilibrium. और टॉपिक जो है that is common ion effect. Common ion effect. Now what do you mean by common ion effect? For this very purpose we have the electrolytes, we have strong electrolytes and we have the weak electrolytes. For example, अगर मैं example लूँगी acetic acid की. So this acetic acid is a weak acid, it ionizes, it gives me acetate ion plus H positive ion. अब अगर मैं इस एसिड का सॉल्ट लूंगी, सपोज मैं इसका सॉल्ट लूंगी, दैट सोडियम एसिटेट. सोडियम एसिटेट जो है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग सॉल्ट एंड इट कंप्लीटली आयोनाइजेस इनटू CH3 एसिटेट आयन प्लस सोडियम आयन. अब कॉमन आयन इफेक्ट है क्या? यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एसिटेट आयन है, यहाँ पर भी एसिटेट आयन है. अगर मैं ये सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन अगर मैं ऐड करूंगी किसको, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है हमारे पास उस सोल्यूशन को, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन जो होता है वो सप्रेस हो जाता है. व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस कॉमन आयन एंड हिंस द इफेक्ट इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट. यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इक्विलिब्रियम है बिटवीन द एसिटिक एसिड एंड द एसिटेट आयन एंड H पॉजिटिव आयंस. इक्विलिब्रियम है. सपोज यहाँ पर है द कंसंट्रेशन ऑफ दिस, suppose the concentration of this is 3 and the 3 mole per liter and this is concentration of 3 mole per liter. जब हमने इसको ऐड किया है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ पर concentration of the acetate ion it gets increased. Now in order to balance the concentration between the two sides, ये एसिटेट आयन जो है ये इसके साथ रिएक्ट करता है H पॉजिटिव के साथ और ये बैक इज कन्वर्टेड इनटू द एसिटिक एसिड. तो जो ये एसिटिक एसिड है उसका आयोनाइजेशन बैक बनता है एसिटिक एसिड, तो उसका आयोनाइजेशन जो होता है एसिटिक एसिड का वो सप्रेस हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस कॉमन आयन एंड हिंस द इफेक्ट इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट. इसी तरह से हम दूसरी एग्जांपल ले सकते हैं this common ion effect की. we have ammonium hydroxide, it's a weak base, this is a weak acid, acetic acid is a weak acid. इसका ionization हमने दिखाया, it gives me acetate ion and H positive ion. and when to this solution we add the weak electrolyte, suppose strong electrolyte, the ionization of this weak electrolyte it gets depressed because of the presence of this common ion and hence the effect its ionization is further suppressed. ऑलरेडी से ये कम आयोनाइज होता है, लेकिन जब हमने इसको ऐड किया है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो उसका आयोनाइजेशन जो होता है वो फर्दर डिक्रीज हो जाता है एंड hence the effect is known as common ion effect. सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं when to a solution of weak electrolyte, when to a solution of weak electrolyte, a solution of a strong electrolyte is added, the ionization of the weak electrolyte is further suppressed due to the common ion and
hence the effect is called common ion effect. ये सारा कुछ जो होता है दैट इज द आयोनाइजेशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट, वो उसका सप्रेस होना, उसका कम होना, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस strong electrolyte having a common ion, is because of the common ion which is common between the weak acid and the strong. उसका जो salt होता है weak acid का या weak base का जो salt होता है वो strong होता है. When we make the salt of that acid with a strong base, we get a strong salt, and having when we add that salt of the acid, तो इनमें आयन कॉमन होता है, उसकी वजह से जो आयनाइजेशन होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का वो सप्रेस, वो कम हो जाता है, एंड दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज द कॉमन आयन इफेक्ट. और जो कॉमन आयन इफेक्ट है इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कॉमन आयन बिटवीन द वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. फॉर एग्जाम्पल यही हम लेंगे एग्जाम्पल एसिटिक एसिड का CH3COH weak electrolyte breaks, it gives me CH3CO negative plus H positive ionizes. And when we add strong electrolyte of the same acid such as the sodium acetate to it, is a strong, it completely ionizes, it gives me CH3CO negative plus Na positive. तो यहाँ पर जो है on the right hand side the concentration of the acetate ion it gets increased, and hence according to the Le-Chatelier's principle the equilibrium is shifted in the backward direction. So equilibrium जब shift हो जाता है backward direction तो यहाँ पर क्या बनता है, acetic acid बनता है. That means acetic acid का ionization जो होता है वो कम हो जाता है because of the presence of this common ion, and hence the effect is called as the common ion effect. या एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं ये कि when for example we take the acetic acid which is a weak acid, it ionizes, it gives me acetate ion and the H positive ion, and when to this weak acid we add the salt of the same acid which is a strong salt, to this weak acid it ionizes, it gives me an ion which is common in both the weak acid and the strong salt. And due to the presence of this common ion, the ionization, the equilibrium is shifted according to the Le-Chatelier's principle. इस यहाँ पर जो है common ion की concentration वो increase हो गई, and hence the equilibrium is shifted in the backward direction. इसी तरह से हम दूसरी example ले सकते हैं. This is the first example. This is the second example. We have ammonium hydroxide NH4OH. This is a weak electrolyte, weak base. It breaks, it gives me ammonium ion NH4 positive ion and the hydroxide ion. अगर हम इसका salt अब add करेंगे, suppose ammonium chloride is added, is a strong salt. It breaks, it gives me ammonium ion and the chloride ion. तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है अमोनियम आयन की वो इंक्रीज हो गई. यहाँ पर जो ये आयन अमोनियम आयन है वो कॉमन है बिटवीन द weak base and it is salt, and salt of this weak acid with a strong weak base with a strong acid, उसका जो salt होता है यहाँ पर जो जब ये आयनाइज होता है तो यहाँ पर ये आयन बनता है. This ion, suppose this ammonium ion and the ammonium ion coming from the weak base, they are common, and hence due to this the concentration of the concentration of the common ion it gets increased on the right hand side, and hence the equilibrium is shifted in the backward direction. इसी तरह से हम इसको ऐड कर सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड विद a strong base. तो वहाँ पर जो सोडियम आयन हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, एंड इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. दिस इज द सेकंड एग्जांपल ऑफ द कॉमन आयन इफेक्ट. सो कॉमन आयन इफेक्ट में हमने याद रखा
हमें क्या करना है, हमें एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लेना है, such as the we have the weak base, one we have the weak acid, acetic acid और weak base, that is the ammonium hydroxide. अगर हम इनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में एक आयन कॉमन होना चाहिए, उस कॉमन आयन की वजह से जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका आयोनाइजेशन कम हो जाता है, सप्रेस हो जाता है, एंड हिंस द इफेक्ट इज कॉल्ड एज द कॉमन आयन इफेक्ट. कॉमन आयन इफेक्ट में एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, जो कॉमन आयन आता है मोस्टली दैट कम्स फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द कॉमन आयन in case of common ion effect mostly comes from strong electrolyte. वीक इलेक्ट्रोलाइट से भी आ सकता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट से भी आता है, लेकिन उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो बहुत कम होती है, तो हम नेग्लेक्ट करते हैं वहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कॉमन आयन फ्रॉम द वीक इलेक्ट्रोलाइट, और हम क्या लेते हैं, जो कॉमन आयन आता है मोस्टली दैट कम्स फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है दैट कम्प्लीटली आयोनाइजेस, जितना उसमें जो सॉल्ट हमने लिया होता है वो सारा का सारा कम्प्लीटली आयोनाइज होता है, तो वहां पर बनता है कॉमन आयन. वीक इलेक्ट्रोलाइट से भी आता है, लेकिन वहाँ वीक इलेक्ट्रोलाइट से जो आयन आता है दे आर वेरी लेस, क्योंकि उसका आयनाइजेशन जो होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का वो कम होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो कॉमन आयन आता है कॉमन आयन इफेक्ट में दैट मोस्टली कम्स फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. दिस वाज about what is common ion effect and the example is based upon the common ion effect. अब हम एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल करेंगे on this common ion effect. Calculate the concentration of, क्वेश्चन है calculate the concentration of hydronium ion, H3 पॉजिटिव आयन, और H पॉजिटिव आयन भी लिख सकते हैं, और H पॉजिटिव आयन in a mixture of H positive ion in a mixture of 0.2 molar sodium acetate in a mixture of sodium 0.2 molar solution of sodium acetate and 0.02 molar solution of acetic acid, full stop. Given that the ionization constant of acetic acid is कितना 1.8 into 10 raised power minus 5. अब क्वेश्चन आप समझिए, क्वेश्चन है क्या, हमें कैलकुलेट करके क्या देना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन किस में, एक मिक्सचर है हमारे पास, कितना 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसिटेट एंड 0.02 मोलर एसिटिक एसिड, ये दो हमने मिलाए हैं. एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन जो है दैट इज 0.02 एंड सोडियम एसिटेट का है 0.2 मोलर.
हमें क्या कैलकुलेट करके देना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, और इसमें क्या दिया गया है, दैट इज द आयोनाइजेशन कांस्टेंट जो होता है एसिटिक एसिड का, दैट इज गिवन, दैट इज 1.8 × 10⁻⁵ क्वेश्चन सिंपल है, हमारे पास एक सोल्यूशन है, मिक्सचर ऑफ ए सोल्यूशन है, उस मिक्सचर में सोडियम एसिटेट है, उस मिक्सचर में एसिटिक एसिड है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन दी गई है, हमें कैलकुलेट करके देना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन्स की, और कॉन्सेंट्रेशन जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट है एसिटिक एसिड का वो गिवन है, दैट इज 1.8 × 10⁻⁵ अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। So we have यहाँ पर हम लिख सकते हैं concentration of CH3COOH that is given, that is equal to 0.02 मोलर। ये है सोल्यूशन क्वेश्चन का, दिस इज गिवन। इसी तरह से है concentration of एसीटेट आयन, सोडियम एसीटेट CH3CONA, उसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.2 मोलर, और एसिड एसोसिएशन कांस्टेंट जो है एसिटिक एसिड का दैट इज इक्वल, और आयोनाइजेशन कांस्टेंट जो है दैट इज इक्वल टू 1.8 × 10⁻⁵। अब सबसे पहले हम क्या लेंगे, दैट्स द वीक एसिड, इट आयोनाइजेस टू ए स्मॉलर एक्सटेंट, वी हैव CH3COOH, it breaks, it gives me CH3CO negative plus H positive। ये वीक एसिड है, हमने क्या दिखाया है, इसका खाली आयोनाइजेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन जो है इसकी एसिटिक एसिड, इनिशियल कंसंट्रेशन जो है एसिटिक एसिड की दैट 0.02 मोलर। एट इनिशियली देयर इज नो आयोनाइजेशन ऑफ द एसिटिक एसिड, सो इसकी कंसंट्रेशन 0 है, इसकी कंसंट्रेशन 0 है। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर क्या है, इसमें से थोड़ा सा अमाउंट डेसोसिएट हो गया, सपोज x डेसोसिएट हो गया तो ये x बन गया, ये भी x बन गया, इसकी कंसंट्रेशन कितनी रह गई, दैट 0.02 माइनस x। हमने क्या कहा कि इसकी कंसंट्रेशन जो है दैट इज गिवन 0.02 मोलर इनिशियली, जब देयर इज नो आयोनाइजेशन देन द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन एज वेल एज द H पॉजिटिव आयन दैट इज इक्वल टू 0। फिर हमने सपोज किया कि लेट एट इक्विलिब्रियम वी हैव द सम अमाउंट ऑफ इट गेट्स डिसोसिएटेड, गेट्स आयोनाइज्ड, एंड लेट दैट अमाउंट बी x एंड x। सो इसकी कंसंट्रेशन जो है एसिटेट आयन की दैट्स x, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जो है दैट्स x, बिकॉज जितना यहाँ पर एसिटेट आयन बनता है उतना ही H पॉजिटिव आयन भी बनता है। तो व्हाट इज द रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ द एसिटिक एसिड, दैट्स 0.02 माइनस x। अब हमारे पास दूसरा क्या है, दैट इज वी हैव सोडियम एसिटेट CH3COONA, ये कंप्लीटली ब्रेक होता है, इट गिव्स मी CH3CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। इनिशियल कंसंट्रेशन जो है इसकी, इनिशियल कंसंट्रेशन वो है 0.2 मोलर इनिशियली, उस वक्त इसकी कंसंट्रेशन क्या है 0, और इसकी कंसंट्रेशन क्या है 0। When it ionizes it completely breaks, जितना है इस सोल्यूशन में वो सारा का सारा ब्रेक हो गया, तो इसकी रिमेनिंग कंसंट्रेशन जो है इट इज 0, एंड जितना सारा ये ब्रेक हो गया बन गया ये 0.2, एंड ये भी बन गया 0.2। अब इस सोल्यूशन में आपको देखना है व्हाट इज द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ द कॉमन आयन। कॉमन आयन कमिंग फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दैट इज 0.2, and common ion coming from that of the weak acid that's called the X. So we have total acetate ion concentration is equal to acetate ion coming from the acetic acid plus acetate ion coming from the strong electrolyte, strong that is sodium acetate, यहाँ पर है एसिटिक एसिड।
मतलब कितना कॉमन आयन आ गया फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वो है 0.2, दैट इज इक्वल टू 0.2। और कितना कॉमन आयन आ गया फ्रॉम द वीक एसिड, दैट्स फ्रॉम द वीक एसिटिक एसिड, इट इज कॉल्ड एक्स। लेकिन हमने अभी पढ़ा है कि जो कंसंट्रेशन आता है कॉमन आयन का, दैट मोस्टली कम्स फ्रॉम दैट ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट से भी आता है लेकिन वो बहुत कम होता है, तो सो हम एक्स को नेग्लेक्ट करेंगे। नेग्लेक्टिंग एक्स, neglecting x, why? Because the concentration of the common ion जो है that mostly comes from that of this strong electrolyte, क्योंकि वो सारा का सारा आयोनाइज होता है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट से जितना भी आता है वो बहुत कम होता है, तो सो हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं, तो एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.2। So we have concentration of CH3CO negative ion concentration that is equal to 0.2। क्लियर। अब क्या हमें कैलकुलेट करके, हमें अब गिवन है इस इक्वेशन में हमें क्या कैलकुलेट करके देना है, द कंसंट्रेशन ऑफ द H पॉजिटिव आयंस। सो वी हैव एसिड एसोसिएशन कांस्टेंट किसके बराबर होता है, Ka इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO नेगेटिव into concentration of H positive divided by the concentration of acetic acid। ये क्या है, ये हमने, क्योंकि हमें क्या निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस, तो इस इक्वेशन को हमने अप्लाई किया है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम हमें क्या कहता है कि जो एसिड एसोसिएशन कांस्टेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सो हम इनका वैल्यू अब सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, दैट इज द Ka किसके बराबर है, व्हाट इज द एसिटेट आयन कंसंट्रेशन, इट इज इक्वल टू 0.2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, ये कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव हमें कैलकुलेट करके देना है, डिवाइडेड बाय व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, इट इज 0.02 माइनस एक्स, 0.02 माइनस एक्स। चूंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका आयोनाइजेशन जो है दैट इज, जो इसमें से आयोनाइज हो गया, थोड़ा सा ही अमाउंट आयोनाइज हो गया, तो हम इस एक्स को नेग्लेक्ट करेंगे। एज acetic acid is a weak electrolyte, so it is ionization is very small, so X in the denominator is neglected, so what is left, we have Ka, that's acid dissociation constant, that is equal to 0.2 into concentration of H positive डिवाइडेड बाय, अब हम इस x को हमने नेग्लेक्ट किया, तो सो वी हैव 0.02। अब एसिड एसोसिएशन कांस्टेंट जो है दैट इज गिवन, दैट इज इक्वल टू 1.8 into 10 raised power 1.8 into 10 raised power 5 is equal to 0.2 into concentration of H positive divided by the 0.02। अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी हैव, or we can write it as 0.2 into concentration of H positive, that is equal to, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 1.8 into 10 raised power 5 multiplied by 0.02। अब concentration of H positive आयन किसके बराबर है, 1.8 into 10 raised power 5 multiplied by, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर हम अगर इसको कन्वर्ट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज पावर 2 माइनस 2, यहाँ हम इसको ऐसे ही लिखेंगे 0.02 डिवाइडेड बाय 0.2।
and concentration of H positive ion, it comes out to be, ये आप कैलकुलेटर पर कर सकते हो, it comes out to be 1.8 into 10 raised power 5. ये हम यहाँ पर सॉल्व भी कर सकते हैं, that's 1.8 into 10 raised power 5 into 2 divided by 100. यहाँ से 2 multiplied by 10. This and this will cancel, this and this will cancel, ये ऊपर चला जाएगा, it becomes 1.8 into 10 raised power, sorry it was minus 5 तो ये ऊपर चला जाएगा, it becomes minus 6 into 10 to the power minus 1 and it is equal to 10 to the power minus 6. The value comes out to be the concentration of the H positive ions, that is equal to 1.8 into 10 raised power minus 6. So this was a numerical based upon the common ion effect. So आज का टॉपिक जो था that was about the common ion effect. और common ion effect में हमने बोला कि common ion effect किसे कहते हैं. Then we done the numerical based upon the common ion effect. Common ion effect की definition जो है वो है, अगर हम कोई weak electrolyte लेते हैं, अगर हम उसको ऐड करेंगे strong electrolyte, तो आयनाइजेशन जो होता है this weak electrolyte का वो सप्रेस हो जाता है, वो कम हो जाता है because of the common ion and hence the effect is called as the common ion effect. यहाँ पर फिर हमने numerical की based upon the common ion effect, we have the two solutions, we have acetic acid solution and we have sodium acetate solution. हमने उनको मिक्स किया है, फिर हमें कैलकुलेट करके देना था द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड वो हमने ऐसे कैलकुलेट किया. यहाँ पर आप pH भी निकाल सकते हो इस सोल्यूशन का. तो pH अगर हमें निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव हमें पता ही है, तो देन वी अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ द pH किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू द माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन. सो pH किसके बराबर है, माइनस लॉग ऑफ व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ दिस, दैट इज इक्वल टू 1.8 into 10 raised power minus 6. तो यहाँ पर pH किसके बराबर है, ये यहाँ आएगा, it becomes minus plus 6 minus log of 1.8 and 1 log of 1.8 is equal to something that's 0 point something. Then we subtract that 0 point something from the 6, we get the pH of the solution. This was all about the common ion effect and the numerical based upon the common ion effect. Thank you so much.